So good evening, everyone. I'm sharing one screen, okay? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार वो सबको एक बार उसका फोटो लेना, ये वाले पेज का। ओके, ना फर्स्ट आई स्टार्ट विद द डाउट्स, ओके? पहले अपना अपना डाउट्स पहले क्लियर करिए सबको। So tell me what are your doubts? जो ध्यान में है, क्या क्या doubts हैं? Yes. कौन सा? 10 नंबर 11 10 और कोई डाउट नहीं है? 10 11 हो गया? 11 में कोई डाउट नहीं है किसी का? सर आपने 11 ट्यूशन में करा दिया था। अच्छा, करा दिया है तो 11 ठीक है। यस सर, यस सर। 10 करते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जो भी बाकी सबसे, जैसे कि सब नंबर 12 13 ये सब करते हैं। एक सेकेंड ना, जस्ट so here we begin with the first doubt, and the doubt is question number 10. So everyone would down the sum of n terms of a progression is 2 to the power n minus 1. मतलब ये सम में हम लोग को दिया हुआ है sum of first n terms of this geometric progression which is 2 to the power n minus 1. Show that it is a GP and find its common ratio. देखो बहुत बढ़िया समय ये हम लोग को यहाँ पे शो करना है कि ये जीपी है, शो करना है एंड फाइंड इट्स कॉमन रेशियो. नाउ लिसन एवरीवन, try to understand what I am explaining. Suppose we have got 2 comma 4 comma 8 16 64 128 and so on. Now tell me, do you all agree that this is a GP? क्या ये GP है या नहीं है बताओ? Yes? yes sir यस सर। नहीं है GP. It is not a GP because what you all are doing is you all are just comparing कि 4 divided by 2 is 2, 8 divided by 4 is 2, 16 divided by 8 is 2, but 64 divided by 16 is how much? It is 4, it is not 2. So you are finding that common ratio is not constant everywhere. पहला 3 जगह पे सेम दिख रहा है, उसके बाद चेंज हो गया. देखो पहले 3 जगह सेम था, उसके बाद चेंज हो गया. So common ratio is not constant everywhere. So this is not a GP. Is this clear? Now why I explain you this? Just note, everyone note down. इसको जीपी प्रूफ करने के लिए बहुत लोग क्या करेगा, हम एक बार इस पार्ट पे बाद में आते हैं, पहले हमको जो मेथड बताना है पहले वो मेथड मैं बता दूं. ओके, ध्यान से नोट करना. तो इसको जीपी प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, देखो ये तो प्रूफ करना है कि कॉमन रेशियो इज कांस्टेंट थ्रूआउट द प्रोग्रेशन. कॉमन रेशियो शुड बी कांस्टेंट, यही तो प्रूफ करना है. और क्या करेंगे देखना है. सी यू ऑल नो दैट, ये तुम लोगों ने ऑलरेडी एपी में भी देखा था कि an is equals to sn minus s of n minus 1. yes everyone, ये तो तुम लोगों ने देखा था एपी में कि nth टर्म इज इक्वल टू sn minus s of n minus 1. और इस टाइप का हम लोगों ने सम भी किया था. तो अगर s of n दिया हुआ है तो फिर s of n minus 1 क्या होगा? It will be 2 to the power n minus 1 minus 1. everyone note down, n के जगह पे n minus 1 रिप्लेस किया, तो जहां जहां n है वहां पे n minus 1 लगा दो. ओके, अब देखो, we know that an is equals to sn divided by s of n minus 1. sn ये रहा, I'm sorry, मैं गलती की है, ठीक है, सॉरी. an is how much? sn minus s of n minus 1. What is sn? It is 2 to the power n minus 1. What is s of n minus 1? 2 to the power n minus 1 minus 1. Open the bracket.
you'll find that 1 gets cancelled. See, we can simplify, इसको हम और simplify कर सकते हैं. देखो कैसे. 2 to the power n minus 1 can be written as 2 to the power n by 2 to the power 1. Check it. Because when bases से power gets subtracted, power subtract होता है जब base same होता है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x to the power m minus n का मतलब क्या होता है x to the power m divided by x to the power n. तो मैं इस चीज को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ. अब दोनों में कॉमन क्या है? We have 2 to the power n common, so what is left? 1 minus 1 by 2 is left. Take LCM. Again, 2 to the power n by 2 to the power 1 can be written as 2 to the power n minus 1. I repeat, 2 to the power n by 2 to the power 1 can be written as 2 to the power n minus 1. तो ये हो गया a. हमको क्या प्रूव करना है कि क्या ये जो Sn का जो फॉर्मूला दिया हुआ है क्या ये Gp का है या नहीं. Gp का होने के लिए कॉमन रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए. अब ध्यान रखिएगा आगे इसके बाद कॉमन रेशियो क्या होता है बताओ तो. कॉमन रेशियो इज an divided by a of n minus 1. an दिया हुआ है. Let us find out a of n minus 1. Now I am waiting for your reply कि अगर a of n 2 to the power n minus 1 है तो बताओ तो a of n minus 1 क्या होगा बताओ. मैं वेट कर रहा हूँ. Tell me. a to the power 2 to the power n minus 2 to the power पूरा बोल. n minus 2. वेरी गुड. बिकॉज n के जगह पे मैंने n minus 1 लगाया है तो जहां पे n है वहां पे n minus 1 रिप्लेस कर लो. तो ये हो जाएगा 2 to the power n minus 2. We know that common ratio denoted with r is an divided by a of n minus 1. That is 2 to the power n minus 1 by 2 to the power n minus 2. दोनों जगह बेस सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power n minus 1 minus n minus 2. Okay, open the bracket, you get 2 to the power 1. Now tell me कि ये जो लास्ट में जो कॉमन रेशियो आया ये कॉमन रेशियो क्या है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बताओ. कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बताओ. सर कांस्टेंट. कांस्टेंट है बिकॉज यहाँ पे कहीं भी n नहीं है. अगर यहाँ पे 2 to the power n या 2 into n होता है इसका मतलब ये कॉमन रेशियो जीपी का नहीं है, क्योंकि जीपी का अगर हम कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट आ रहा है वो तभी जीपी का है, तभी ये जीपी का नहीं है फॉर्मूला. अगर कॉमन रेशियो कांस्टेंट है तभी जीपी का है. अगर वेरिएबल होता मतलब वो कॉमन रेशियो है ही नहीं, क्योंकि कॉमन रेशियो का डेफिनेशन क्या होता है? कॉमन रेशियो इज द रेशियो ऑफ द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, और वो हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए. ये कांस्टेंट है तभी हम बोल सकते हैं कि ये जीपी का है. कांस्टेंट अगर नहीं होता तो जीपी नहीं होता ही. नाउ प्लीज लिसन एवरीवन, इसके बाद लिख लेना तुम लोग. अब बता रहा हूं तुम लोगों को ये मेथड को अवॉइड करना. एन दिया हुआ है तुम लोगों को तो बहुत लोग क्या सोचेगा कि लेट मी फाइंड आउट a1 which is 2 to the power 0. Let me find out a2 which is 2 to the power 1. Let me find out a3 which is 2 to the power 2. तो जब देख गया कि ये 2 to the power 0 that is 1 है, ये 2 है और ये 2 स्क्वायर है, तो ये बहुत लोग क्या बोलेगा पता है कि ये जीपी है. तो एक बात बताओ, अगर मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है और ये 32 है, ये 128 है, ये सपोज 256 है, तो क्या ये जीपी है? बताओ तो. ये जीपी है या ये जीपी है? बताओ कौन सा जीपी है? कौन सा जीपी है दोनों में? सर ऊपर वाला जीपी है. लेकिन क्या ये जीपी है? नहीं. लेकिन इस टाइप का सम में ध्यान देना एक बार, इस टाइप का सम में हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते, बिकॉज हो सकता है कि हम जो पहला 3 टर्म्स निकाल रहे हैं, पहला 3 टर्म्स तक जो कॉमन रेशियो है वो सेम हो, आगे जाके ना हो सेम. इसीलिए तुम लोग जनरल मेथड यूज करना. देखो मैंने जनरल मेथड यूज किया. जनरल मेथड मतलब मैंने कोई स्पेसिफिक टर्म्स निकाल के नहीं किया. देखो मैंने an डिवाइडेड बाय a of n minus 1 किया है. मतलब इसे क्या प्रूव होता है पता है? कि इस पर्टिकुलर सी जो प्रोग्रेशन है इसका हर जगह कॉमन रेशियो सेम है, यही है.
अगर मैं सपोज A1 निकाल के, A2 निकाल के, A3 निकाल के, अगर मैं 3 टर्म निकाल के या 4 टर्म निकाल के सिर्फ दिखाता हूं कि कॉमन रेशियो हर जगह सेम है, इससे प्रूव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या प्रूव होता है बताओ तो, कि वो सिर्फ 4 टर्म तक के लिए, मतलब मैंने यहाँ 3 टर्म लिखा है तो 3 टर्म तक के लिए कॉमन रेशियो सेम है, क्योंकि प्रूव करना है ना हम लोग को, क्योंकि हमको प्रूव करना है। तुम 4 टर्म निकाल तक करके कॉमन रेशियो निकालो तो सिर्फ 4 टर्म तक के लिए वो कॉमन रेशियो सेम है, कांस्टेंट है। क्या ठीक है कि आगे 10 टर्म के बाद जो है वो पैटर्न चेंज हो जाए, इसीलिए क्या करना, यूज द जनरल मेथड। आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर। आई थिंक यूज द जनरल मेथड प्लीज, डोंट यूज एग्जांपल, आई मीन डोंट यूज स्पेसिफिक टर्म्स टू एक्सप्लेन दैट इट इज जीपी। ये अपने लेवल में, अभी इस लेवल में हम ये नहीं, हम इतना बोल सकते हैं कि इस लेवल में इसको हम नहीं, आई मीन फुल मार्क्स नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज इसीलिए फुल मार्क्स नहीं मिलना चाहिए बिकॉज तुम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं कि स्पेसिफिक टर्म्स लेकर के बोल रहे हैं कि क्योंकि 1 है 2 है 2 स्क्वायर है तीसरा टर्म, तो ये जीपी है क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है। क्या ठीक है कि 3 टर्म के बाद पैटर्न चेंज हुए? अब तुम लोग ये पूछना चालू कर दोगे कि इसका मतलब कि जो भी हम लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां भी तो 3 या 4 टर्म ही दिया रहता है, लेकिन वो तो बोल के दिया रहता है कि देखो ये जीपी है, इसका 10 टर्म निकालो, ये जीपी है, इसका सम ऑफ 10 टर्म निकालो, लेकिन यहाँ पे हमको प्रूव करना है। तो क्योंकि प्रूव करना है तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक 3 टर्म या 4 टर्म निकाल के नहीं कर सकते, हमको ये जनरल मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 3 या 4 टर्म से सिर्फ ये प्रूव होता है कि इट इज द कॉमन रेशियो इज ओनली सेम फॉर दोस 3 टर्म्स व्हिच आई हैव रिटन, फॉर दोस 4 टर्म्स व्हिच आई हैव रिटन। So that's why use the general method. Okay, you can copy it on this method. If you have doubt, you can ask and clear it out. These things were clear in AP only. That sum of first 7 term minus sum of first 6 term is equal to A7. मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था। उसके बाद फिर ये नया है कि कॉमन रेशियो इज A by M minus 1. Okay, as it is constant, यहाँ लिख देना is constant. Hence, 2 to the power n minus 1 represents sum of n terms of a geometric progression of a GP. ऐसे लिख देना hence तो ये बहुत बढ़िया सम था, ये इट्स अ वेरी गुड सम। ये इस एक्सरसाइज में जो हम लोग कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट सम है। So everyone note down, I'm going to teach you number 12 and similar kinds of I'll give you जो कि तुम लोग करेंगे, ध्यान रखना। So you have 8 plus 88 plus 888 plus dot 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 to n terms. Okay, I'll note down. Now just answer me. Like, do you agree that this is, I mean, what like progression do you find? कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहे हैं या ज्योमेट्रिक का प्रोग्रेशन फॉलो कर रहे हैं? Tell me. कौन सा? ज्योमेट्रिक। पता है तुम लोग ये इस टाइप का क्वेश्चन देख करके और दिमाग में जीपी चल रहा है तो देख करके तुम लोग लगता है जीपी है, बट ये जीपी नहीं है। देखो कैसे 8 into 11 is 88, बट क्या 88 into 11 is 888 or 88? Yes or no? I repeat, 8 into 11 is 88. Fine. But क्या 88 into 11 is 888? No, it's not 888. It is wrong. So it is not an AP. It's not a GP. अब क्या ये AP है? AP तो कहीं भी नहीं है। AP तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि AP होने के लिए कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए और GP होने के लिए कॉमन रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो कॉमन रेशियो इधर 11 है, इधर कुछ और है, इधर फ्रैक्शन में आ जाए। सो ये कॉमन रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करेंगे देखते हैं, ध्यान रखना। इसमें करना क्या है हम लोग को, इस पर्टिकुलर सीरीज का समेशन निकालना है अप टू n टर्म्स। इस सीरीज का हम समेशन निकालना है अप टू n टर्म्स। सो लेट अस टेक 8 कॉमन फर्स्ट। ओके, 8 कॉमन लेने के बाद भी कुछ नहीं हुआ देखा जाए तो। क्यों कॉमन लिया? ध्यान रखना। In order to multiply 9 to this expression, and as we are multiplying 9 हटाने के लिए, बैलेंस करने के लिए 9 से डिवाइड भी करें।
मतलब multiplying numerator and denominator by what? By 9. Now why we have chosen 9 only? The reason is we have chosen 9 because 9, after multiplying 9, every term can be expressed as difference of two terms, where one term will form one, I mean follow one pattern, and the second term will follow the another pattern. ध्यान से देखो, we can write 9 as 10 minus 1, which is 9. 99 as 100 minus 1. 999 as 1000 minus 1. So we have chosen 9 because 9 ही ऐसा नंबर है कि मल्टीप्लाई करने के बाद सारा टर्म्स का 10 के मल्टीपल से जो डिफरेंस है वो 1 हो जाएगा. देखो 10 minus 1 9, 100 minus 1 99, 1000 minus 1 999. समझ में आया तो बात? इसी तरह हम इसको 10 से क्यों नहीं कर सकते मल्टीप्लाई? इसको तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आएगा? देखो तो 10 into 11 110 हो जाएगा ना. फिर ये हो जाएगा 1110 हो जाएगा. तो भी तो नहीं होगा. कहाँ होगा? ओके सर, नहीं होगा. बात तो बराबर ही होगा. मल्टीप्लाई करके देखो, हमको पता है कि अगर 2, 4, 8, 16 अगर जीपी है तो इसमें सारा में अगर हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये जीपी में होगा. अगर ये जीपी में है तो सेम नंबर मल्टीप्लाई करके ये भी जीपी में होगा. अगर 2, 4, 10, 12 जीपी में नहीं है तो मल्टीप्लाई करके जीपी कैसे आ जाएगा? तुम बताओ. समझ में ना? ये अगर जीपी में नहीं है तो उसमें अगर हम सेम नंबर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जीपी में आ जाएगा? कभी नहीं आएगा. लेकिन अगर एग्जिस्टिंग नंबर, गिवन नंबर अगर जीपी में है और सारा में हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टिंग नंबर क्या होगा? जीपी में ही है. तो ये जीपी में तो है नहीं, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करते थोड़ी ना जीपी में आ जाएगा. लेकिन 9 मल्टीप्लाई करके फायदा ये हो रहा है कि उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है ना? अब देखो, ध्यान से नोट करना. 10 minus 1 is 9. ओके. 99 को हम लोग 100 minus 1, दैट इज 10 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं. बताओ देखो. 99, देखो ध्यान देना, पहला टर्म को 10 minus 1, सेकेंड टर्म को देखो ध्यान देना, सेकेंड टर्म को 10 to the power 2 minus 1, थर्ड टर्म को 10 to the power 3 minus 1. तो कोई बता सकता है nth टर्म को क्या लिख सकते हैं? बताओ सर. 10 to the power n minus 1. वेरी गुड. इट इज 10 to the power n minus 1. पैटर्न देखो, 10 to the power 1 minus 1, 10 स्क्वायर minus 1, 10 क्यूब minus 1. पहला टर्म, फर्स्ट टर्म 10 to the power 1 minus 1, सेकंड टर्म 10 स्क्वायर minus 1, थर्ड टर्म 10 क्यूब minus 1, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 10 to the power 1 minus 1. ऑलराइट एवरीवन. अब देखो नेक्स्ट. अब हम यहां पे क्या करेंगे देखना. We have got 1, 2, 3 n terms. How many terms? n terms. 1 2 3 4 नहीं, 5 नहीं, n terms है यहाँ पे. अब सारे टर्म्स का हम पहला टर्म को एक अलग ब्रैकेट में रख देते हैं. ठीक है? और -1 को कितना बार? n टर्म्स अलग कर देते हैं. कितना बार है -1 कितना बार है? 1 2 3 4 बार नहीं, 1 2 3 n टर्म्स, n बार है. अब बताना तुम लोग ये कैसा सीरीज है? बताओ तो ये सर जीपी है. जिसका पहला टर्म क्या है? 10. कॉमन रेशियो क्या है? 10. वो भी 10. कितने टर्म्स का समेशन निकालना है? n टर्म्स का. फॉर्मूला हो जाएगा a r to the power n minus 1 by r minus 1. यहां से -n कॉमन ले लें. -1 is 9. 1 को अगर हम 3 बार ऐड करें तो 3 आएगा, 4 बार ऐड करें तो 4 आएगा, n बार ऐड करें तो कितना आएगा? कितना आएगा? 1 को n बार ऐड करें तो कितना आएगा? सर n आ जाएगा. सिंपल. जैसे हम 2 को 3 बार ऐड करें या 2 into 3 लिखें
2 को 4 बार ऐड करें या 2 into 14 तो बात बराबर है। तो सेम वे अगर हम 1 को 3 बार लिखें तो 1 into 3, 4 बार लिखें तो 1 into 4, n बार लिखें तो कितना होगा 1 into n। सम खत्म हो गया लगभग, बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बाकी है, समेशन निकल गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए इसको। सिंप्लीफाई मतलब यहां तक भी छोड़ सकते हैं, चलेगा, ठीक है, यहां तक ही छोड़। ओके, अब तुम अपना आंसर भी चेक कर सकते हो लास्ट में कि तुम्हारा आंसर राइट है या रॉन्ग। एक बार बताओ, इसमें पहला दो टर्म का समेशन कितना है बताओ तो, ऐड करो तो 88 प्लस 8 कितना होता है 96. अब यहाँ पे n की जगह 2 लगाओ, तो जहां जहां n है वहां पे 2 लगाओ। 10 square is 100, 100 minus 1 is 99, 11 into 10 is 110, that is 8 into 9 into 108, that is 8 into 12, that is 96. Okay, so what is the answer? 96 मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ये कॉपी कर लो आराम से, ठीक है। सब कोई कॉपी करो, मैं दूसरा सम देगा, आराम से कॉपी करो। Everyone note down. I am giving one question on the board, okay? एक बार तुम लोग ये ट्राई करो फटाफट। So I am giving एकदम similar question में दे रहा हूँ। Find out the sum of first n terms of this GP. एक बार खुद से ट्राई करके देखो। And then you all have to do question number 14, 1 for 14 इसके बाद तो ट्राई करते हैं। So everyone has done this sum and answer is almost the same as the previous question, तो बस तुम लोग मैच कर लेना। सेकंड वाला मैं एक बार कर देता हूँ, ठीक है, देखना है। So it is question number 14. So सबसे पहला चीज, let us take 7 common, okay? उसके बाद let us multiply 9. नाइन हटाने के लिए 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से। इसके बाद we can write 0.9 as 1 minus 0.1. 1 minus 0.1 is 0.9. 1 minus 0.01 is 0.99, check कर लो। 1 minus 0.1 is 0.9. 1 minus 0.01 is 0.99, और ये क्या होगा 1 minus 0.001 up to 8 terms. 0.1 means 1 by 10. 0.01 means 1 by 100, and this means 1 by 1000.
अब देखो एक बार 1/10 हो गया, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस 1/10 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस 1/10 क्यूब, ठीक है। देखो एक बार, तो अगर मान लो मैं पहला टर्म को 1 माइनस 1/10 लिख सकता हूं, सेकेंड टर्म को 1 माइनस 1/10 स्क्वायर, थर्ड टर्म को 1 माइनस 1/10 क्यूब, तो बताओ तो nth टर्म को क्या लिख सकते हैं? 1 minus 1/10 to the power 6. ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, 1 को अलग कर देंगे, ठीक है। 1 कितना बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, n बार है, और -1/10 -1/10 स्क्वायर -1/10 क्यूब, इसको हम लोग अलग कर देते हैं। 1 का सम n बार कितना होगा, n हो जाएगा, इन सब में से -n कॉमन ले लें, तो बच जाएगा 1/10 1/10 स्क्वायर 1/10 क्यूब एंड सो ऑन 1/10 टू द पावर n। ना ये क्या कैसा सीरीज है बताओ तो एक बार। यस, कैन यू टेल मी ये कैसा सीरीज है? यस, दिस इज व्हिच सीरीज, टेल मी। जीपी जिसका पहला टर्म क्या है, 1/10 है, कॉमन रेशियो भी 1/10 है, जो कि लेस देन 1 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना, a 1 माइनस r to the power n by 1 minus r। One to the power n is 1 by 10 to the power n। 1 minus 1 by 10 एलसीएम ले लेना, 10 10 कैंसिल हो गया, यू कैन लीव योर आंसर टिल हियर, ओके, यहां तक कुछ हो सकता है। क्या किया मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला लगा दिया, 10 minus 1 9 9 by 10 10 10 कैंसिल हो गया, ये रहा 7 by 9 n minus 1 by 9 into ये, यहां तक आंसर शो। नाउ आज के लिए एक बार इतना ही रह देते हैं, ये सब हम होमवर्क दे रहे हैं, एक बार तुम लोग करना, और नेक्स्ट डे हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बिगिन एनसीईआरटी बुक्स, सो मेक श्योर दैट यू आर रेडी विथ योर एनसीईआरटी बुक्स। Sir,